Hello to class 12th and class we are doing lesson number 9 forms of market, and I'll let you know that lesson number 9 forms of market is the last chapter of your microeconomics. Your economics has been divided into two parts. This I told you in the first video also. Your economics book is in two parts. One is microeconomics and the other part is macroeconomics. So we are in lesson number 9 and this after doing lesson number 9 we are done with microeconomics, and we'll start with lesson number um, 12. That is your first chapter of macroeconomics. So we were doing monopolistic market, right? So what is monopolistic market? We'll understand it with the help of features. The first feature is large number of buyers and sellers. First feature is large number of buyers and sellers. All right. So monopolistic competitions, the first feature is large number of buyers and sellers, and the number of buyers and sellers is quite large here, but not unusually large. ठीक है, बहुत ज़्यादा large नहीं है. So not unusually large, but yeah, it is large. And the in case one of the seller do not want to sell its product, or one of the buyer do not want to demand, this is hardly going to put any effect to the market conditions, or it is hardly going to hamper the price of the market. कहने का मतलब ये है कि इस तरह के मार्केट में बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है, लेकिन जो बायर्स एंड सेलर्स का लार्ज नंबर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा बायर्स है या बहुत ही ज़्यादा सेलर्स है. ऐसा नहीं है, अनयूजुअली लार्ज नहीं है. पर यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, तो उनका जो मार्केट में शेयर है या मार्केट में जो दबदबा है, सेम में सेलर्स का भी जो दबदबा है वो क्या बहुत इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ अ सिंगल सेलर डू नॉट वांट टू सेल इट्स प्रोडक्ट, तो इट इज नॉट गोइंग टू पुट एनी काइंड ऑफ एनी इन्फ्लुएंस इन द मार्केट. तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा मार्केट वालों को, या मार्केट की प्राइसेस को कोई खास असर नहीं पड़ेगा एक बायर के या एक सेलर के या कुछ बायर्स के कुछ सेलर्स के ना खरीदने या ना बेचने से. ठीक है, देयरफॉर दे आर सेइंग फर्दर कि this means that the firm can follow an independent price policy. So if I just read this, if you just see in your book, तो इसमें बोल रहे हैं if you just see large number of buyers and sellers monopolistic competition में, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप मेन पॉइंट्स को समझिए. I'll read from the beginning. The first characteristics of monopolistic competition is that the number of sellers is large but not unusually large. This I've already told you. The implication of fairly large number of a firm is that each firm produce a small share of output. Therefore, firm under monopolistic competition can reasonably assume that any action on its part will affect the rival firm so insignificantly. Same बात वो कह रहे हैं कि सेलर या बायर के कुछ सेलर्स या कुछ बायर्स के ना बेचने और ना खरीदने से बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है मार्केट के प्राइसेस पर, because they are a very small portion of the whole market. They are a very small portion of the whole market, a single seller or a single buyer. Got it? So any action on the part will affect the rival firm so insignificantly that it need not bother about the reaction of the rival firm. तो rival firm जो आपकी दुश्मनी firm है, उसको ज़्यादा कोई bother करने की ज़रूरत नहीं है. This means that the firm can follow an independent price policy. जब मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी के भी एक सिंगल सेलर के बेचने या प्राइस ना बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को. ठीक है, या बहुत मुश्किल से कोई फर्क पड़ता है कि राइवल फर्म को कोई असर ना पड़े उसके इस एक्शन से. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑल सेलर्स, सब सेलर्स की क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी आती है. ऑल सेलर्स हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी. इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, ठीक है. यहाँ पे हर सेलर की अपनी इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी है. क्यों है? क्योंकि उनका शेयर मार्केट में इतना छोटा है कि उनके कुछ भी प्रोडक्शन के डिसीजन या सेलिंग के डिसीजन मार्केट को हैम्पर नहीं करते, या उनके राइवल बेसिकली उनकी जो राइवल फर्म है उनको वो बॉदर नहीं करते हैं. तो यहाँ पे हर व्यक्ति की अपनी, यहाँ पे हर सेलर की अपनी क्या हो गई है, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी हो गई है. राइट, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी हो गई है. नाउ this mean now it makes its own price and output decisions. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सेलर्स है, सेलर्स की खुद की क्या है, आउटपुट पॉलिसी है, प्राइस पॉलिसी है. ठीक है, I'm sorry. So यहाँ पे all the sellers have their own price policy
एंड आउटपुट पॉलिसी। दो तरह की पॉलिसी की बात कर रही हूँ मैं, आउटपुट पॉलिसी एंड प्राइस पॉलिसी। यहाँ पे हर इंडिविजुअल सेलर की अपनी खुद की होती है, क्योंकि उसका डिसीजन उसके राइवल फर्म वाले को कोई असर नहीं डालता है। ठीक है, इट मेक्स इट्स ओन प्राइस पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म कैन लोअर इट्स प्राइस विदाउट टेकिंग एनी इनटू अकाउंट दैट द अदर फर्म विल आल्सो लोअर द प्राइस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एक फर्म अपने प्राइस को घटा सकती है बिना ये सोचे, वो आराम से घटा सकती है कि उसके राइवल फर्म वाला भी कुछ ऐसा कर देगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक फर्म क्या कर रही है, उसका असर दूसरी फर्म पे ज्यादा नहीं पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब वो अपना प्राइस, मतलब एक फर्म अपना प्राइस को घटा बढ़ा सकती है, क्योंकि उसका असर उसके राइवल फर्म पर नहीं पड़ेगा, वो भी अपने प्राइस को घटाएगा पड़ेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ज्यादा जब असर पड़ता ही नहीं है किसी एक फर्म के डिसीजन से, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी रखते हैं। सी, हम अपनी प्राइस पॉलिसी को कब नहीं चेंज करते हैं, जब हमको ये डर होता है कि हमारे चेंज करने से अगला भी अपनी प्राइस पॉलिसीज को चेंज कर देगा या आउटपुट पॉलिसी को, आइडियाज को चेंज कर देगा। ठीक है, हम तब नहीं करते। लेकिन जब किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, प्राइस को कम या ज्यादा कर देने से, किसी एक सेलर के प्राइस कम ज्यादा कर देने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या है, तो मतलब सेलर्स इंडिपेंडेंट है अपनी प्राइस को ऊपर नीचे करने के लिए या आउटपुट को ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, नाउ they further say that it is partly for this reason that firm under monopolistic competition are price makers. So this is due to this, we can say that there is partial control over the price, control over the price। ठीक है, प्राइस के ऊपर हम कह सकते हैं कि पार्शियल कंट्रोल है, थोड़ा बहुत कंट्रोल है, फुल कंट्रोल नहीं है, जीरो कंट्रोल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि जीरो कंट्रोल है। सो पार्शियल कंट्रोल इज देयर। ठीक है, they set their own prices. It is situation where prices are set by the decision of individual firm. So what they are doing, they are setting their own prices. Why they are setting their own prices? I told you, they are setting their own prices because their own price policies is not changing the decision or is not bothering the rival firm. Got it? So this is your first feature. Next is a differentiated product. Differentiated product. Differentiated product means heterogeneous product. That means the different firms in a monopolistic market produce different types of goods. They produce different types of goods. Slightly difference is there. ठीक है, slight difference तो आपका होगा। जैसे कि just let take an example, दो टूथपेस्ट है, one is normal with herbal, the one is with mint and the other is with salt. सो है तो दोनों टूथपेस्ट, बट डिफरेंस किस चीज का आ गया, स्लाइट डिफरेंस आ गया उनके टेस्ट का या उनके इंग्रेडिएंट का। वन टूथपेस्ट इज हैविंग मिंट फ्लेवर एंड द अनदर टूथपेस्ट इज हैविंग सॉल्ट इन इट। सो व्हाट इज, सो दो दे आर दो बोथ आर toothpaste, but the difference is of the ingredient. So here the slight difference could be seen. So this is what the product differentiation is all about. So here in this kind of market, the product are differentiated. They are slightly different in one or the other way. किसी भी एक तरीके से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते ही हैं. So let's go through this. They say that product differentiation is the key element of monopolistic competition. तो this is ये कि हमारा एक key feature है, ये हमारा key feature है, very important feature. Product differentiation is very important feature. Under monopolistic competition, firm produce differentiated product. अब जब फर्म क्या करेगी, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाएगी, तो क्या हो जाएगा, प्राइस कंट्रोल आ जाता है. ठीक है, प्राइस कंट्रोल. जब एक का प्रोडक्ट दूसरे से अलग है, एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म से अलग है, तो वन फर्म कैन चार्ज अ डिफरेंट प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट. ठीक है, फ्रॉम द कंज्यूमर्स. तो जब मेरा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अलग है, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू चार्ज डिफरेंट प्राइस. मैं अलग प्राइस चार्ज कर सकती है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में ये खासियत है और दूसरे प्रोडक्ट में वो चीज़ें नहीं है. तो मेरे पास क्या हो जाता है, एक एडवांटेज हो जाता है दैट या आई कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस. ठीक है, स्लाइटली प्राइस कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, यहाँ पे इस तरह के फर्म में क्या है, हर फर्म क्या कर रही है, हर सेलर क्या कर रहा है, एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहा है. स्लाइट डिफरेंसेस बताया मैंने आपको, स्लाइट डिफरेंसेस है, प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज substitute of goods available in the market. ठीक है, goods but not perfect substitute. अब देखो, जब प्रोडक्ट के अलग अलग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में हैं, सो एक प्रोडक्ट
का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि हाँ, एक का सब्स्टिट्यूट मिल सकता है इस तरह के मार्केट में, क्योंकि सबके सब बना दो टूथपेस्ट है, लेकिन हर एक के टूथपेस्ट में कुछ ना कुछ अलग बात है, राइट। तो उससे क्या जाता है कि हर एक टूथपेस्ट दूसरे टूथपेस्ट का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं रह गया, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं रह गया, तो सिर्फ क्या रह गया, सब्स्टिट्यूट रह गया। तो दो as there are there is a in the monopolistic market there is one main feature, key feature is there, differentiated product. So this the brings a consequence, and that consequence is this, that you do not find any close substitute or perfect substitute in this market for your product. You are going to get only substitutes are available in your market. The substitute of the goods you will get in the market, but not close substitute, not perfect substitute. Why so? Because the goods are differentiated in one or the another way. Got it? So they are similar enough to be regarded as the same commodity, but are sufficiently different so that consumer tends to regard them the different as different products. So in this market you are going to get substitute, easily you will get substitute, but not close substitute or perfect substitute, due to the feature that the products are differentiated. Okay. नाउ द प्रोडक्ट जो आपके हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ डिफरेंट हो सकते हैं प्रोडक्ट्स। कैसे डिफरेंट हो सकते हैं? दो तरीकों से डिफरेंट हो सकते हैं। फिजिकल, आपके फिजिकल फीचर्स अलग हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, फिजिकल फीचर अलग हो सकता है, एंड आपका क्या में ये एनवायरमेंटल फीचर भी अलग हो सकता है। सो अब ये दो, अब प्रोडक्ट इज डिफरेंट पर किस तरीके से डिफरेंट है? तो पहला आपका फिजिकली डिफरेंट हो सकता है। फिजिकली डिफरेंट का मतलब है डिफरेंसेस कैसे हो सकते हैं? फिजिकली डिफरेंस मींस डिजाइन कुड बी डिफरेंट, पैकेजिंग कुड बी डिफरेंट, अपीयरेंस कुड बी डिफरेंट। तो ये सारी चीजें क्या होगी आपकी, सारी चीजें क्या होगी, फिजिकल चीजें होगी, कि फिजिकल बेसिस पे हमारे पास ये क्या है, डिफरेंसेस है, ठीक है। साइज कुड बी डिफरेंट। और दूसरा होता है आपके एनवायरमेंटल फीचर्स, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस। एनवायरमेंटल डिफरेंसेस क्या है कि लोकेशन ऑफ सेलर, कि सेलर किस तरह की लोकेशन में, लोकेशन ऑफ सेलर के आधार पे डिफरेंट हो सकता है। देन रेपुटेशन क्या है सेलर की, रेपुटेशन ऑफ सेलर। एम्बियंस, मतलब जिस शॉप में जा रहे हो उसका एम्बियंस, क्या एम्बियंस मतलब उसका दिखने में वो कैसी है, आपको अच्छी लग रही दुकान दिखने में कि आपको ऐसी लग रही है, आपकी गंदगी लग रही है शॉप में, तो एम्बियंस मतलब आपको दिखने में कोई चीज़ कैसी लग रही है, व्हेन यू आर एंटरिंग देयर तो सब लुक कैसा है। तो इन सब बेसिस पे क्या हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ऑल टुगेदर when we talk about differentiated product means that there is slight difference in the product, and the products of one firm is another in some or another way, and this gives an advantage to the sellers to have a partial control over the price, because I told you earlier also that the slightly differences in the price do not, or slight changes in the price do not bother the rival firms. And the differences could be on the basis of two types of differences. Physical differences are the differences which could be seen from outside, that is design, packaging, appearance, size and all. And the second could be environmental differences. Environmental differences means that in what sort of environment you are selling the product. The environment includes location of the seller, reputation of the seller, then ambience of the shop could be there, right? Then distance of the store. Distance of the store could also be there. Distance of the store, right? And such kind of things. तो इस तरह की चीजें आपको क्या करती है, ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की चीजें है ये, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करती है। तो ऑल टुगेदर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से हमने ये समझा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, क्लोज, जिसकी वजह से हमको परफेक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाता है, और प्राइस का स्लाइट कंट्रोल इसी फीचर की वजह से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द टू features that we have done, and I believe that two features are enough for you to understand, and after this we will be moving with the other features. And in case you have any sort of any problem, you can message me or text me. After that, take care of yourself, stay at home, stay healthy.